a new dawn, a new hope for every citizen who lives in any of the cities of the country. The 3 mega urban projects are worth 4 lakh crores, a determined endeavour by the government to recast the urban landscape of the country to make urban areas more livable and inclusive, besides driving the economic growth. Some of the aspects that are being looked into through these 3 missions is in places like Nagpur, a 24/7 water supply. In Karnataka, compost plants for solid waste management. In Delhi, waste to wealth processing. In Agartala, LED lighting. 100 smart cities and a new urban renewal mission for 500 cities has been named after the former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, with a total outlay of 98,000 crores in the next 5 years. $48,000 crores has been earmarked for the Smart City project, and 50,000 crores will be spent on Amrut. ये कहानी है सर, एक 10 साल में बिना टैक्स बढ़ाए हुए प्रॉपर्टी टैक्स 166 करोड़ से Under the Smart Cities mission, each selected city would get central assistance of 100 crores per year for 5 years. The aim of the mission of building 100 smart cities is to promote adoption of smart solutions for efficient use of available assets, resources and infrastructure with the objective of enhancing the quality of urban life and providing a clean and sustainable environment. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लिया डेटा, फायर विंग से लिया और जितने भी केसेस थे उसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने का कोशिश किया और इसकी वजह से सर करीब 10 The e-tax system in Hyderabad being explained in great detail to the Prime Minister. ये है दिल्ली बाजार, ये हाल है आज। बस कमेंट क्या आया वो जा रहे अगस्त से मैं टाइम अपना जो सीएम साहब ने भी आपने ऑफिशियली प्रधानमंत्री ने खुद लगभग થઈ ગયા છે બીજા માણસો જે તકલીફ આપી 1700 ફેમિલી ઓલરેડી ટ્રાન્ઝિટ પર ચાલી ગઈ છે સાહેબ બિલ્ડિંગો નીચે આવી ગઈ છે. Namaste sir, I'm from Hyderabad. Sir, we have done a citizen involvement initiative to make Hyderabad a world-class city 6 years ago in 2009. So we have requested for participation. Almost 1,000 people participated and 100 organizations including ISRO, NRSC, all of them participated. They gave so many strategies and most of them are getting implemented in smart parking, GPS protocol. This can be used also. हाई साइड होता है ऑटोमेटिकली गेट खुलने लगता है
various aspects of the exhibition being explained to the Prime Minister, who's taking a keen interest. जिलों की साफ सफाई और डिगेटिंग वगैरह बहुत गंदा था लगता है एनएमसीपी के बजट के बाद पूरा किया। My name is Prakash, Director of Municipal Administration. This is universal design toilet that we have designed, constructed and implemented, sir, in 182 locations in 95 municipalities, sir. We are extending the scope of these toilets into our Swachh Bharat mission also, and we are expanding it into a very big way, sir. So with this toilets, the construction can be quick, sir, and it will be very sleek and it will be very neat and easy to maintain, sir. एक पूरे देश में जो सिंबल कलर उसका कॉमन कर दिया पूरे देश में, तो डिज़ाइन भेजा कोई भी व्यक्ति जाए तो पता भाई ये वो है किसी भी लैंग्वेज वाला हो। मैडम मैक्सिमम रुचि दे रहे हैं इसमें तमिलनाडु में। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर हम लोग 4 लाख शौचालय बना रहे हैं और 100% ओपन डेफिकेशन फ्री कर रहे हैं सर। इसमें सबसे बड़ी बात ये है सर कि 100% शौचालय का यूज़ हो सर, इसलिए हम लोग हर घर में नल कनेक्शन कर रहे हैं ताकि शिफ्ट से उसको उपयोग कर सकें। 100% डोर टू डोर कनेक्शन कैसे उसको यूजर चार्ज से रिकवर कर रहे हैं? प्रेजेंटेशन अंदर भी कर रहे हैं बात। नमस्कार सर, मैं कुणाल म्यूनसिपल कमिश्नर हूँ सर। सर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करके जो झोपड़पट्टियों में जो कम्युनिटी जगह से करने का वो टैकल करने के लिए सर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके कम्युनिटी के साथ काम करके यूज़र फ्री मॉडल पे लोकल डिज़ाइन के माध्यम से जो है सोसाइट की कोशिश कर सकते हैं। चेयरमैन NPCC हम रीडेवलप कर रहे हैं दिल्ली के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलोनी को 100 एकड़, इसमें से 2500 मकान तोड़े हैं और 5000 बना रहे हैं, प्लस 12 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस एरिया। कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है, जो ऑफिस बना रहे हैं सर उसको हमने पब्लिक सेक्टर को 30 साल की लीज पर दे दिया, तो उससे 6000 करोड़ रुपये आ रहा है, 4200 करोड़ रुपये का खर्चा है और 30 साल की मेंटेनेंस भी इसमें बिल्ट इन है। तो 30 साल मेंटेन करेंगे और जो सरप्लस मनी जाएगी वो गवर्नमेंट स्टोरेज सर कमर्शियल ऑफिस हैं 10 स्टोरी और रेजिडेंशियल है 15 स्टोरीज। ये एम्स के बिल्कुल सामने है सर, ये उसका 3-4 ऐसा मॉडल्स है। एक न्यू मोती बाग ऑलरेडी हम कर चुके हैं सर। न्यू मोती बाग में लैंड मोनेटाइजेशन CLC ईस्ट कुदराई नगर के उसमें लीज से 300 करोड़ रुपए फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दिया, कोई ग्रांट लिया नहीं। मेरा निवेदन है हम सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। The model of the redevelopment of the Bhendi Bazaar area in southern Mumbai being explained in great detail to the Prime Minister. And from the exhibition, the Prime Minister is being escorted towards the plenary hall of Vigyan Bhavan, where he will inaugurate the 3 missions today: Amrut, Smart Cities Mission and Housing for All. Amrut is a program covering 500 cities of India to provide financial assistance for basic urban infrastructure like drinking water, sewerage, septage, urban mobility and developing urban green spaces. हम स्वागत करते हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके साथ हैं केंद्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन तथा संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री M. वेंकैया नायडू जी, शहरी विकास तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री माननीय श्री बाबुल सुप्रियो जी। इसके साथ ही मंच पर उपस्थित माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र,
माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, माननीय श्री निर्मल कुमार सिंह जी, उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के साथ साथ हम माननीय श्रीमान पी.के. सिन्हा जी, कैबिनेट सचिव और सचिव आवास और शहरी गरीबी उपशमन श्रीमती नंदिता चटर्जी जी का स्वागत करते हैं। भारतवर्ष में शहरों के विकास के लिए आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अवसर है माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत का। सचिव आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय श्रीमती नंदिता चटर्जी से अनुरोध है कि वे प्रधानमंत्री जी का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं श्री मधुसूदन प्रसाद, सचिव शहरी विकास को, कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत करें। करतल ध्वनि से हम My heartiest welcome to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. My boss in urban development, Shri M. Venkaiah Naidu. Chief Minister from Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji. Chief Minister of Haryana, Shri Manohar Lal Khattar ji. Cabinet Secretary, Shri P.K. Sinha. Secretaries from Urban Development and HUPA, Shri Madhusudan Prasad and Mrs. Chatterjee. Dignitaries from all over the world, diplomats, friends who comprise the most important tier of the 3-tier federal system that we have in our country. This is the first time, let me tell you, ladies and gentlemen, that 500 mayors, municipal commissioners, and chairmen from all over India have assembled in Delhi to celebrate the beginning of 3 very important and smart missions that our Honorable Prime Minister is going to inaugurate and launch for all of us, for everyone in the country to celebrate and be happy about, that we have a goal in front of us which we need to achieve. Friends from the media, thank you so much for being a part of this event and making sure that the entire country knows about the goal that we are all walking forward under the leadership, inspiring and invigorating that it is, and enlightened of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. India, as we all know, is urbanizing at a very rapid pace. Just to give you a small figure, while everything else about these great missions that we're going to launch today is in my heart, there are a couple of mathematics which are very complicated and big, which I probably need to read out from the papers to ensure that I don't make a mistake. While the total Indian population increased by 225% between 1951 and 2011, the urban population increased by 504% during the same period. As per 2011 census, about 377 million, yes, 377 million Indians, comprising more than 31% of the country's population, live in urban areas and contribute to over 62% of the GDP. As many as 52 cities in India have a million-plus population, and going forward by 2030, it is predicted that 68 Indian cities will each have more than 1 million inhabitants and 6 megacities with more than 10 million people in each. Projections suggest that India will have more than 50% population living in urban areas by 2015, and therefore we need to make our the entire urban infrastructure really, really smart, and we are very, very honored and thankful and grateful to our Honorable Prime Minister for showing us the way as to how to go forward. Ladies and gentlemen, as I already said, this is the first time that all of you have assembled in the city of Delhi
And let me tell you that, there's a small anecdote that I'll probably take 30 seconds more than I am designated, but I think it's very important. When I sit in a train, I was just thinking in the morning, when you sit on a train, there are 3 tires in that. And we have an upper tire, which probably is the central government, then we have the middle tire, which is the state government, and the lower berth, or the lower tire, which is the urban local bodies. And let me tell you, while there is a top berth, a middle berth, they might be sleeping on those 2 berths during the night, but during the day, when the light is all around us, when we actually need to work, all the people from the upper tires, they actually need to rest on the lower tire. And that is what is represented by all of you. You're the actual heroes who will take whatever is happening in Delhi to the people. You are the windows to our dreams. You are the windows to the world. You are the way, you are the manner in which we'll dream in the footsteps that is being shown by our Honorable Prime Minister and actually deliver it to the people. The train, as you see, and why it is important for all of us to work in harmony. Because if you sit in the train, the example that I gave, the train goes in one single direction. Everyone sitting in the train exactly knows that the train is not going to go to any other station than what it shows in the front. So it is going to go to a particular goal. It is only going to stop once it reaches that particular goal. And when you have an invigorating leadership, an invigorating, enlightened path shown ahead in the manner of a really, really strong and resolute thought process of our Honorable Prime Minister, who's the engine of the entire process of growth, I think the train is definitely going to reach the destination with all 3 tires of the government sitting together in harmony and chatting with each other about how to take the country forward. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much, Honorable Prime Minister, for making this event so very important and special with your gracious presence. I wish you all a very enlightened and happy 2 days where you get introduced and introduce us to the people of India with the great 3 endeavors, the Smart City Mission, the Amrut Mission, and the Housing for All in 2022. And as they say, then when you start walking in the right direction, you should keep walking, because as our Honorable Prime Minister has very famously said, we are the biggest democracy in the world, but why not dream about making it the finest democracy in the world? Thank you so much, ladies and gentlemen. माननीय राज्य मंत्री जी के आत्मीय शब्दों के साथ ही मैं सम्मानीय सदन को यह अवगत कराना चाहूँगा कि a contest to invite smart ideas for smart cities called मेरा शहर मेरा सपना was organized through mygov.in, which went on live on the evening of 15th June and closed on the midnight of 20th June. Honorable Prime Minister had also tweeted from his PMO India handle requesting people to participate in the contest. As a result, in just 5 days, 1,655 participants from all over the country submitted their responses. इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय श्री वेंकैया नायडू, शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन तथा संसदीय कार्य मंत्री को कि वे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय श्री वेंकैया नायडू जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्री निर्मल सिंह जी और शहरी विकास मंत्रालय का सचिव श्री मधुसूदन प्रसाद जी और हमारा हाउसिंग विभाग का सचिव श्रीमती नंदिता जी और मंत्रालय में मेरा साथी श्री बाबिल सुप्रियो जी और हरियाणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, कैबिनेट सचिव सिन्हा जी और इस समावेश में आए हुए देश भर से आए हुए 500 शहरों से आए हुए महापौर और म्यूनसिपल चेयरमैन, चेयरपर्सन और अधिकारी और फॉरेन एम्बेसी से आए हुए प्रतिनिधि बंधुओं और इंडस्ट्री से आए हुए प्रतिनिधि बंधुओं, बहनों और भाइयों, मैं सचमुच में बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ इस सुंदर दृश्य देख के। पूरा भारत हमारा सामने है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आज सचमुच में एक यज्ञ का प्रारंभ हो रहे, शहरी विकास का एक नया रूप रेखा देने के लिए, पुनर्जीवन करने के लिए
परिवर्तन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, विजन के आधार पर हम आगे बढ़ने के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुआ है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, who is the leader of our nation, he has a vision, he has the character, caliber, capacity and conduct, he has the discipline, dynamism, dedication and devotion to take the country forward. Transformation of India is his mission. And we have seen, starting with Niti Ayog, what is Niti? Many of us may not have read it fully. Niti Ayog in the place of Planning Commission, NITI, National Institute for Transformation of India. भारत का आमूल परिवर्तन हर एक क्षेत्र में, हर एक अंग में, हर एक वर्ग में, हर एक प्रांत में, हर एक इलाका में परिवर्तन आना चाहिए। भारत एक शक्तिशाली, समृद्धिशाली बन के आगे बढ़ना चाहिए। यही लक्ष्य है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का उद्देश्य है। कीपिंग दैट इन माइंड, द प्राइम मिनिस्टर has announced several programs, gave several ideas to all of us on Make in India, Skill India, Digital India, Clean India, स्वच्छ भारत, जनधन योजना, पहल, मुद्रा बैंक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जन सुरक्षा योजना, जनश्री बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, और अभी अभी जो हुआ दुनिया भर में योगा, इंटरनेशनल योगा डे, 21 को इंटरनेशनल योगा डे बनाने में प्रधानमंत्री ने जो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उसी कारण से द एंटायर वर्ल्ड, 192 कंट्रीज celebrating yoga. It's a great tribute to our ancient wisdom. So आदि काल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से हमने पूर्वजों जिया और दिया, हमको विरासत में मिला भारतीय संस्कृति, वो संपदा, उसको पूरा दुनिया में प्रचारित करने के लिए जो प्रयास हुआ वो सफल भी हो गया। इसलिए मित्रों, आज ट्रांसफॉर्मिंग द अर्बन एरियाज, ये आज का यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। Today is indeed a red letter day for transformation of urban India. If our country is to rise to true economic potential, the key in effective management of the wave of urbanization in the country, which is gaining rapid momentum. Urban areas are the islands of hope, besides being catalysts of social change and economic development. The need of the hour is to make the congenial atmosphere for better living. Our government basic goal is to enable inclusive urban development so that those sections of the society who are forced to live in the fringes of urbanization get their due from development efforts. The 3 major urban development and housing missions which the Prime Minister is launching today are part of his vision. They have come out of his own thinking. And we have discussed this with all the stakeholders. I held a meeting with all the ministers to start with in the June 2014, 2-day workshop for all the ministers and secretaries. Then we held extensive consultation with the municipal commissioners in the north, east, south and west through 4 conferences. And we have also we have taken industry also into confidence, CII, FICCI, ASSOCHAM, PhD. And also we have taken inputs from some of the leading IT companies in India, whether it is Infosys, Wipro, Tatas, and other this thing. 17 to 18 foreign countries, they have shown interest in the scheme of smart cities. We had interaction with them also. We also had an extensive discussion with Bloomberg, the former mayor of New York, has taken his suggestions also. And after all this, we have come out with these 3 new schemes, and I'm happy that these schemes are going to be launched by the Prime Minister today. The design and implementation of these is taking the inputs from all. Under the Housing for All mission, in urban areas, 2 crore houses will be built over the next 7 years for the economically weaker sections and low-income groups. I'm happy to state that this mission would ensure house ownership for 2 crore women. The first right will be given to the woman. महिला को पहला अधिकार देंगे मकान के ऊपर. ये भी प्रधानमंत्री का सोच है. This is also an idea that has come out of the mind of the Prime Minister. And then, of course, jointly along with their husbands. Under the Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation, Amrut, the name itself gives regeneration of the urban areas. Regeneration and transformation of urban areas. We have named it after our great leader, Sri Atal Bihari Vajpayee, who has first time shown the taste of development to the people of the country.
He is the architect of the connectivity revolution, air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, tele-connectivity, rural connectivity, और नेट कनेक्टिविटी एंड ऑल्सो पोर्ट कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी करके दिखाया उन्होंने, पूरा देश में परिवर्तन लाया. इसलिए हमने सोचा उनका नाम पे स्कीम चलाना उचित होगा. फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई द नेम इज कॉल्ड एज अटल मिशन. Smart City Mission intends to promote reliable public transport, non-motorized transport like walking and cycling, e-governance, good water supply, and assured power supply, accountability through citizens' participation. This also benefits the urban poor the most. It is because the present haphazard and unplanned urbanization is serving the car-owning and rich classes more than the poor. Accordingly, 3 new urban missions are pro-poor in their basic orientation. Let me inform you that the Prime Minister has taken personal interest in the formation of these schemes. He had 2 presentations on each of these subjects, gave his own ideas out of his experience as the Chief Minister of a state, which is one of the models of the country. Friends, when I have taken the housing for all of urban areas to the Cabinet, it was broadly endorsed by the Cabinet, but the Prime Minister said, let there be a scheme for rural also, let the housing scheme and rural, urban housing and rural housing be discussed together, and then 5 of us ministers sat together, we had exchange of ideas, and then came out with these new schemes. Friends, as a result of this discussion, the interest subvention has been substantially increased to 6.5%, first time in the history of the country. This much interest subvention is going to be given to the loans taken by the poor people and economically weaker sections for their houses. On the basis of experience of the earlier mission, हमने अनुभव के आधार पर नया योजना का रचना किया है और हमने सोचा है कि प्लानिंग जो हो रहा है देश में, प्लानिंग दिल्ली से नहीं होना चाहिए, गली से शुरू होना चाहिए और गली से शुरू होकर दिल्ली का मार्गदर्शन मिले, दिल्ली का मदद मिले, यही हमारा सोच है. मित्रों, we have completely done away with the subjectivity in sanctioning the projects and funds for the states. Under the 3 missions, selection of cities and allocation of funds will be based on objective and equitable criteria for giving equal weightage to urban population in each state and the number of statutory cities and towns. Urban reforms are the need of the hour. I will be talking to you leisurely. Today, the urban governance is in a bad shape comparatively. We have to improve it. We have to put more civic sense. We have to create needed infrastructure. Then we must also start implementing then rules and regulations. That should be the order. Create awareness, create infrastructure, and then take penal action whoever violates it. That should be the approach we are planning. So the urban reforms of the need of the hour, all these 3 missions will be promoted. Identified reforms as per the concrete action plan and performance in this regard. We have made consultation with the urban citizens mandatory under the new missions. The need of the hour is states, union territories, and local bodies, central government. We must all come together. Then only these missions will be successful. The countdown begins today. The next 5 to 6 years will be very crucial for deciding the future of urban India. Mayors and municipal chairpersons of 500 urban local bodies and their administrative heads are attending today's mega launch. We will be having extensive consultation, and there will be presentation on Swachh Bharat. There will be presentation on water recycling, the water, used water, and also on various aspects of rainwater harvesting, and also solid waste management, sanitation, then better public transport systems. All these will be explained to you and will be taken around also. There is a small exhibition outside so that you can see and then understand the better practices, best practices followed in different parts of the country. Friends, at the end of the day, I just want to stress on one thing. They are very attractive. Name of Amrut is attractive. Housing for all, very attractive. And then smart cities, it is very smart. But smart cities require smart leadership. Not in height, weight, coat, boot, suit, but in performance, in vision, in decision making, leader must be smart. And smart cities require smart people. They must be willing to reform because it's going to be the PPP model. People has to participate. They have to pay for the user charges and they have to follow certain amount of discipline. Then only you can make your city smart. So all these things, first of all, we, the heads of the municipal bodies and administrative heads, we should understand, and then
make our people to understand and change the mindset so that this reform process is on and we will be able to get the needed investment. I compliment the Secretaries of Urban Development, Housing, for their efforts in finalizing these 3 missions. And I also would like to compliment my MOS and also the other staff who are all involved in this, in preparing these 3 mega schemes to be launched by the Honorable Prime Minister today. I am very thankful to the Prime Minister. He is kind enough to accept and come over here. He has gone through the exhibition and then he will be guiding all of us during his course of address so that we can take inspiration and then move forward. Today and tomorrow, I will also be here. I will be participating in your discussions, but most of the discussions will be like a workshop. You give suggestions, you see the presentation and ask for clarification, then we move on. That's how we are planning to have this today, this thing. I have a small announcement to make. I just now said, the Honorable Prime Minister has tweeted from his PMO, India handle requesting people to participate in the contest Mera Shahar, Mera Swapna. My city and my dream. That's a contest through mygaon.com. So there are 3 subjects: common solutions for cities, 694 entries; smart solutions for traffic problems, 645 entries; use of IT to improve governance, 316 entries. The first prize is 40,000, second prize is 25,000 for each category. Task 1, common solutions for all citizens. The first prize goes to Sravan Shankar, Chennai, Tamil Nadu. Second prize goes to Nisha Mary Polos, Kottayam, Kerala. Task 2, smart solutions for traffic problems. First prize goes to Sharad Mohandru, Delhi. Second prize goes to Kumaresh Kumar Sharma, Mumbai, Maharashtra. Task 3, use of information technology to improve governance services, IT. First prize goes to Ranjan Dubey, Kolkata, West Bengal. Second prize, Jayesh Wani, Thane, Maharashtra. We just now saw outside, Prime Minister and myself, Hyderabad without enhancing taxes, using IT and digitizing land record, how the revenue has gone up. And we have seen about the Kolkata experiment also. The similar things should be followed, and some of the cities already, Bangalore also is on the move, and other cities also are catching up. This should be followed by one and all. Thank you, friends. Namaskar. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री वेंकैया नायडू जी। आपने अपने प्रेरक उद्बोधन में तीनों मिशन कार्यक्रमों के बारे में संक्षेप में प्रकाश डाला है। हमारे सभी डेलीगेट्स इस 2 दिवस की कार्यशाला में इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। अब समय है शहरी विकास मंत्रालय के 2 प्रमुख मिशन मोड कार्यक्रमों के लोगो और टैगलाइन के विमोचन का। मैं अनुरोध करता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट के माध्यम से दोनों मिशनों के लोगो और टैगलाइन का विमोचन करने का कष्ट करें। Amrit, the peacock is our national bird, and the colorful spread of its wings signifies happiness, joy, and cheer. The Amrit mission is aimed at improving the quality of life and to bring cheer to our citizens. The colorful depiction in the logo beautifully connects these 2 messages. Next. The Smart City logo. The butterfly is a symbol of change, joy, and color. It also shows the transformation and growth from caterpillar to a beautiful butterfly. The Smart City mission is about creating opportunities for this change to take place. The pixel butterfly in the logo is an inspiration to bring out the urgent desire in our cities to become the engines of growth through development of smart cities. This will have the power to transform the nation. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगा पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अब वे हमारे तीनों प्रमुख मिशन मोड कार्यक्रमों की गाइडलाइन के रूप में दिशा निर्देशों की पुस्तक का विमोचन करें। साथ ही मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय अतिथियों से भी अनुरोध है
कि इन गाइडलाइन दिशा निर्देशों का विमोचन कर सांकेतिक रूप से इन तीनों महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों का शुभारंभ करें। The Amrit is a program covering 500 cities of India to provide financial assistance for basic urban infrastructure like drinking water, sewerage, septage, and urban green spaces. The mission is reform-linked and will provide approximately 50,000 crore as central assistance for a period of 5 years. The Smart City Mission is a vision of developing 100 cities as leaders in providing smart solutions in urban infrastructure and IT-based citizen services. The Housing for All mission will address the estimated 2 crore housing shortage in urban areas with options available for states and cities to choose from, including in situ and credit-linked subsidy. A technical submission is also envisaged to develop low-cost designs using local material and aesthetics. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी गणमान्य अतिथियों से। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके समक्ष देश के 500 शहरों से निर्वाचित प्रमुख अर्थात महापौरगण, अध्यक्षगण, सभापतिगण तथा साथ ही उन शहरों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कमिश्नर्स उपस्थित हैं जो इन मिशनों को, इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपके सपने को पूरा करने का संकल्प लेकर आए हैं। मैं अब अत्यंत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वे इस सभा को संबोधित करें और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। मंत्रिपरिषद के मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान वेंकैया नायडू जी, श्री बाबुल सुप्रियो जी, महाराष्ट्र के युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्रीमान निर्मल सिंह जी, कैबिनेट सचिव श्रीमान पीके सिन्हा, हुफा सचिव श्रीमती नंदिता जी, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्रीमान मधुसूदन जी, राज्यों से आए हुए सभी मंत्री महोदय, नगर और महानगरों से आए हुए अध्यक्ष और मेयर श्री, अधिकारीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सभी मुखिया, अनेक देशों के राजदूत महोदय और उपस्थित सभी महानुभाव, आज इस एक छत के नीचे शहरी भारत इकट्ठा हुआ है, अर्बन इंडिया। एक प्रकार से इस विज्ञान भवन में वे लोग बैठे हैं जिनके जिम्मे देश के करीब करीब 40% नागरिकों की सुख सुविधा की जिम्मेवारी है। इस देश के 40% जनसंख्या, करीब करीब 40%, जो या तो शहरों में जीवन गुजारा करती हैं या शहरों पर आधारित अपना जीवन गुजारा करती है, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मिले, एक सामान्य मानवी की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कैसे हो, और जब पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ है तो हम दुनिया जिन ऊंचाइयों पर पहुंची है
उसे बराबरी करने की दिशा में और उससे आगे बढ़ने की दिशा में पहल कैसे करें, प्रारंभ कैसे करें और किस दिशा में आगे बढ़े। तो उन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए एक तरफ झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करने वाला वो परिवार, एक तरफ रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर आया हुआ मजबूरन नागरिक, और दूसरी तरफ बदलता हुआ वैश्विक परिवेश। दो छोर की स्थिति में से हमें गुजरना है। हम इसलिए निराश होकर के नहीं बैठ सकते कि दुनिया तो बहुत आगे बढ़ चुकी, पता नहीं हम ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और हम उदास होकर के नहीं बैठ सकते कि ठीक है भाई, वो अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं, वो अपना कर लेंगे। जी नहीं, हमारे देश के गरीबों को हम उनके नसीब पर नहीं छोड़ सकते। हमारा दायित्व होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है, और उस जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अगर योजना पूर्वक अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां पलटी जा सकती हैं, स्थितियां सुधारी जा सकती हैं और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और उस बातों को ध्यान में रखते हुए इस शहरी जीवन में बदलाव लाने के लिए आप सबके साथ 2 दिन विस्तार से विचार विमर्श होने वाला है। यहां पर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं और यहां पर शहरी क्षेत्रों का दायित्व संभालने वाले, चाहे नगर पालिका हो या महानगर पालिका हो, उसके सरकारी अधिकारी भी हैं। हम सब मिलकर के आगे बढ़ने का संकल्प करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में 25-26 जून कोई भूल नहीं सकता है। 40 साल पहले सत्ता सुख के खातिर देश को आपातकाल के बंधनों में बांध करके जेल खाना बना दिया गया था। देश में संपूर्ण क्रांति का सपना लेकर के चल रहे जयप्रकाश जी नारायण के नेतृत्व में लाखों देशभक्तों को, लोकतंत्र प्रेमियों को जेलों में बंद कर दिया गया था। अखबार पर ताले लग गए थे। रेडियो वही बोलता था जो सरकार बोलती थी। ऐसे दिन थे 40 साल पहले। आज 25 जून को और 26 जून को हम मिलकर के उन सपनों को संजोना चाहते हैं कि जहां पर हर नागरिक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच फूले फले, प्रगति करे, उसको अवसर मिले, उसको सुविधा मिले, उस दिशा में हम काम करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि कल ही हमने कैबिनेट में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के स्मृति में एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय किया है, जो लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए हमेशा हमेशा वो दिशा दर्शक बनता रहेगा और विकास की सारी योजनाएं, यात्राएं जन सामान्य के सहयोग से, जन सामान्य की भागीदारी से कैसे आगे बढ़े, उस दिशा में हम निरंतर प्रयत्नरत करना चाहते हैं।
हमारे देश में करीब 500 शहर ज्यादातर गांव से रोजी रोटी कमाने के लिए लोग आते ही चले जा रहे हैं। बहुत तेजी से हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है। अच्छा होता आज से 25-30 साल पहले हमने अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी समझा होता, अर्बनाइजेशन को एक अवसर माना होता। छोटी जगह में थिकली पॉपुलेटेड लोग एक प्रकार से देश की इकोनॉमी के ड्राइविंग फोर्स होते हैं। उस शक्ति को हमने पहचाना होता और हमारे अर्बन ग्रोथ इंजन के रूप में हमारी विकास यात्रा में उसकी भूमिका को हमने जाना होता और उसके प्रकार से उसको ताकत दी होती, तो हम भी आज दुनिया के उन समृद्ध और प्रगतिशील शहरों के बराबरी कर पाए होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पहले क्या नहीं हुआ उसका रोना धोना गाते रहेंगे तो बात बननी नहीं है। पुराने अनुभव बहुत बुरे हैं, मैं जानता हूं, और उसी के आधार पर निराश बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर स्पष्ट विजन के साथ, लक्ष्य को प्राप्त करने के इरादे के साथ और नागरिक को केंद्र में रखते हुए अगर हम योजनाएं करते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि कोई रुकावट आ सकती है। यहां 2 दिन में हमारे सामने कई शहरों के बेस्ट प्रैक्टिसेस के प्रत्यक्ष किए हुए कामों को प्रस्तुत किया जाएगा। अगर हैदराबाद टैक्सेशन सिस्टम में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ कर सकता है, किसी भी प्रकार के नए टैक्सेस के बजाय भी कलेक्शन में इतना इंप्रूवमेंट कर सकता है, तो और शहर भी कर सकते हैं। अगर कर्नाटक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उसमें से कंपोज की प्रक्रिया के संबंध में अगर आगे बढ़ सकता है, तो और शहर भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीजों की यहां चर्चा होने वाली है कि जो कभी हमने सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं। हम उन्हीं चीजों को करना चाहते हैं जो ये देश कर सकता है और किसी ने करके दिखाया है। अब उसको हमने सब मिलकर के आगे बढ़ाना है। आप देखिए देश का रुतबा बदल सकता है। अब छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश माओवाद के कारण परेशानियों से जूझ रहा प्रदेश, जंगलों की रक्षा करना एक बहुत बड़ा दायित्व वाला प्रदेश, उसने ओपन डिफेक्शन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। और उनकी कोशिश है कि हम छत्तीसगढ़ को ओपन डिफेक्शन से मुक्त कर देंगे। एक लक्ष्य लेकर के अगर नेतृत्व चल पड़ता है तो स्थितियां बदली जा सकती है। छुटपुट बहुत कुछ हो रहा है। इस योजना के तहत उन सारे अनुभवों के आधार पर, यानी कोई हवाई बातें नहीं, उन अनुभवों के आधार पर एक कदम और कैसे आगे बढ़ाया जाए, पहले से कुछ अच्छा कैसे किया जाए, एक जगह पे होता है वो सब जगह पे कैसे हो। कुछ लोग करते हैं, हम मिलकर के सब लोग क्यों न करें, उस भाव को पैदा करने का प्रयास है। भारत जिस तेजी से अर्बनाइज हो रहा है, एक प्रकार से यूरोप के किसी छोटा देश देखें तो हिंदुस्तान में हर वर्ष एक नया देश जन्म लेता है शहरों में।
मतलब हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को पार करने के लिए हमने निश्चित योजनाओं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ कानूनी बाधाएं होगी तो उसके रास्ते खोजने पड़ेंगे। आर्थिक व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था होगी, उसके संबंध में स्थानीय इकाई, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबने मिलकर के एक मॉडल खड़ा करना होगा ताकि हम पैसों के कारण अटके नहीं। आज पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल करीब करीब स्वीकृत हो चुका है। उसको कैसे हम बल दें? हम ज्यादा से ज्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे लाएं? हम आर्थिक संसाधनों को विश्व में जहां से भी प्राप्त कर सकते हैं कैसे प्राप्त करें, लेकिन निर्धारित समय में हम इन स्थितियों को कैसे बदले। किसी भी इंसान, गरीब से गरीब इंसान का एक सपना होता है, खुद का अपना घर हो। और एक बार अगर खुद का घर हो जाता है तो फिर वो सपने संजोने लग जाता है। जब मकान मिलता है तो सिर्फ छत नहीं मिलती, चार दीवारें नहीं मिलती हैं। जब गरीब को घर मिलता है तो धीरे धीरे उसके इरादे भी बदलने लग जाते हैं। घर मिलते ही मन करता है यार एक आध दरी ले आए तो अच्छा होगा, फिर मन करता है यार दो कुर्सी लाए तो अच्छा होगा, फिर करता है नहीं नहीं यार टीवी मिल जाए तो अच्छा होगा, फिर लगता है ये सब करना है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करे तो अच्छा होगा, फिर कर लगता है फालतू खर्चा करता था अब उसको थोड़ा पैसे बचाऊंगा, अगले महीने ये लाऊंगा। जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। और वही सेल्फ मोटिवेशन इन कारणों से आता है। हमारी कोशिश ये है सिर्फ मकान देना यानी एक परिवार को जो कि बेघर है वो घर वाला बने इतना नहीं, उसको जीवन जीने की हैसियत देना, उसके मन में जीवन जीने का उमंग भरना, उसके जीवन में जीवन को साकार होने का आनंद देखने को मिले और आने वाली पीढ़ियों को देने का उसका सपना पूरा हो, ऐसा एक माहौल बनाने का इरादा है। शहरों में करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा परिवार उनके लिए घर बनाने हैं। अब हमारा देश ऐसा है कि अगर नहीं बना तो जवाब मुझसे मांगा जाएगा। कोई उनसे जवाब नहीं मांगेगा कि ये 2 करोड़ बेघर रहे क्यों, कोई नहीं मांगेगा। है देश का स्वभाव है, क्या करेंगे, हमें उसी से गुजारा करना है। लेकिन कोई कुछ कह देगा, इस डर के कारण हम काम करना छोड़ दें तो देश का कभी भला नहीं होगा। और इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हमारे गरीब परिवारों को घर मिले। आजादी के 75 साल हो रहे हैं 2022 में। उन आजादी के दीवानों का नाम देते ही हमें रोमांच होता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद करते हैं तो लगता है कैसा बलिदान था। गांधी, सरदार, उनकी विरासत को देखते हैं तो लगता है कितना कष्ट झेला था। उन्होंने जो सपने देखे थे, उन सपनों में क्या ये भी एक सपना नहीं था कि आजाद हिंदुस्तान में हर परिवार के पास अपना एक घर हो? मैं मानता हूं आजादी के 75 साल जब हम मना रहे हैं तब हमारे भीतर एक आवाज उठनी चाहिए कि मेरे देश के अंदर कोई गरीब ऐसा ना हो कि जिसको फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहना पड़े। यह हम बदलेंगे, यह हमारा दायित्व है। और एक बार इस मिजाज को लेकर के यहां से निकलेंगे तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। आज शहरों का विकास कैसे हो रहा है? आप किसी भी शहर में जाकर के पूछिए, बहुत कम शहर ऐसे मिलेंगे कि जहां पर 5 साल के बाद शहर कैसा होगा उसका कोई खाका कागज पे मिलेगा।
10 साल के बाद कैसा शहर होगा उसका खाका कागज पे मिलेगा नहीं। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपर है उनको तो पता होता है कि शहर इतना बढ़ेगा, इस दिशा में बढ़ेगा, फिर वो वहाँ जमीन ले लेगा, योजनाएं डाल देगा, मकान तो खड़े कर देगा, लेकिन जिंदगी जीने योग्य व्यवस्थाएं पहुंचती नहीं है। न रोड बनता है, न बिजली पहुंचती है, न ड्रेनेज की व्यवस्था होती है, और लोग आते हैं पैसे देकर के मकान भी लेते हैं, बाकी व्यवस्थाएं होती नहीं। क्यों? क्योंकि शहर के नेतृत्व ने शहर नहीं बनाया, कुछ प्रॉपर्टी डीलर ने शहर को बढ़ाया है। ये जो मिसमैच है, उस मिसमैच को बदलना है। शहर कैसा बढ़ेगा, कब जाएगा, कहां, किस रास्ते आगे बढ़ेगा, वेस्ट में बढ़ेगा कि ईस्ट में बढ़ेगा, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी उसमें क्या जगह होगी, ये प्लान जब तक शहर का नेतृत्व दीर्घदृष्टि के साथ नहीं करता है, ये स्थिति बनी रहेगी। हम इस अमृत योजना के माध्यम से ये एक बदलाव चाहते हैं कि शहर खुद अपना सोचने लगे, शहर अपनी योजनाएं बनाने लगे, और कहां जाना, कैसे जाना, उसका फैसला शहर करे। जरूरत के आधार पर वो चलता जाए, बढ़ता जाए, और बाद में व्यवस्थाएं विकसित कर, कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, एंक्रोचमेंट आ जाता है, रोड नहीं होता है, ट्रैफिक की समस्या आती है, पानी नहीं, बिजली नहीं, सारी समस्याएं हम झेलते रहते हैं। और ये हर शहर के अगल बगल में आपको दिखेगा कि किसी ने उसको बना दिया और बाद में वो शहर को गोद लेना पड़ता है, और वो बहुत तकलीफ वाला होता है। हमने इसकी योजना क्यों न करनी चाहिए? हमारे देश में शहरों के विकास के लिए एक तरफ हम स्वच्छ भारत की बात लेकर के जब आए, मैं मानता हूं कि सरकार से लोग 2 कदम आगे हैं स्वच्छ भारत के काम में। कहीं सरकार कम नजर आती है, लोग ज्यादा नजर आते हैं। मैं विशेष रूप से मीडिया का आभारी हूं। मैं देख रहा हूं, वरना मुझे याद है कि मैं 15 अगस्त को जब स्वच्छ भारत की बात करके निकला तो मुझे डर लगता था, ये रोज मेरे बाल नोच लेंगे कि यहां कूड़ा है, यहां कचरा है, डिकना है, फलाना। लेकिन मैं आज उन सबको सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नागरिकों को ट्रेन करने का काम उठाया, और सभी मीडिया के लोग कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे कि क्यों कूड़ा यहां पर ये है, तुम यहां क्यों फेंकते नहीं हो। मैं समझता हूं जब इतिहास लिखा जाएगा, मीडिया के स्वच्छ भारत के अभियान का जो नेतृत्व आज मीडिया कर रहा है, देश में बदलाव लाने का वो कारण बनेगा। मैं देख रहा हूं बदला जा सकता है ये। और आज हमारे यहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हमारा विकास ऐसा नहीं हो सकता कि जो शहर और गांव के बीच में संघर्ष पैदा करे। हमारा विकास ऐसा होना चाहिए जो शहर और गांव एक दूसरे को पूरक होना चाहिए। अगर शहर को पानी चाहिए, गांव वालों को पानी मिले या ना मिले, हम तो ये पानी शहर को देना ही पड़ेगा। और पीने का पानी की बात ऐसी होती है कि जब मानवता का विषय होता है तो कोई बोल भी नहीं पाता। क्या इसके उपाय नहीं है? क्यों ना हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करें और वो पानी गांवों को, खेतों में वापस करें, तो कभी किसान भी परेशान नहीं होगा, गांव भी परेशान नहीं होगा, और शहर को पीने का पानी चाहिए, उसकी उपलब्धि की कोई तकलीफ नहीं होगी। हम ये चिंता क्यों ना करें? हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके कंपोस्ट बनाने के पीछे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करने की दिशा में क्यों काम न करें? और वही फर्टिलाइजर हम नजदीक के गांवों को दें। हमने देखा होगा कि बड़े शहर के आसपास के 30-40 किलोमीटर के जो गांव होते हैं, वो ज्यादातर सब्जी की खेती करते हैं, ज्यादातर, क्योंकि उनको तुरंत सुबह सुबह मार्केट मिल जाता है। शहर में उनका डेली
आधार पर चलता है बाजार। अगर हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कंपोस्ट फर्टिलाइजर, जो शहरों के कूड़े कचरे से हम बनाते हैं, वो अगर हम गांव में दे दें तो जो सब्जी मिलेगी ऑर्गेनिक सब्जी मिलेगी। अगर हमारा ये इनपुट कॉस्ट कम होगा तो सब्जी भी सस्ती आएगी। सब्जी सस्ती आएगी तो गरीब आदमी भी 100 ग्राम सब्जी खाता है तो 200 ग्राम खाएगा, और सब्जी ज़्यादा खाएगा तो न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, हेल्थ के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अल्टीमेटली बजट के बर्डन कम होते जाएंगे, सुविधाएं बढ़ती जाएगी। लेकिन हम अगर ये सोच करके काम करें तो ये काम बढ़ सकता है। और इसलिए हमारे शहरों का विकास का मॉडल, और इसलिए जो अमृत योजना है इसमें इन बातों पर बल दिया गया है कि हम इन बातों को कैसे करें, प्लान बे में आगे बढ़े, गरीबों को घर मिले, सामान्य मानवी को जीवन की सुविधाएं मिले। जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, उन स्मार्ट सिटी जो बनेगी, ये पहली बार स्मार्ट सिटी की योजना ऐसी है कि जिसमें शहरों का निर्णय भारत सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय राज्य सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय वो शहर का नेतृत्व, वो शहर के नागरिक, वो शहर के म्युनिसिपैलिटी के लोग तय करेंगे। थोपा नहीं जाएगा, आवाज नीचे से उठनी चाहिए। और इसलिए पहली बार हिंदुस्तान में चैलेंज रूट के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया है। दुनिया के कई देशों ने यह प्रयोग किया है, कुछ पैरामीटर तय किए, और जो शहर इस पैरामीटर को पूर्ति करेगा वो एंट्री पाएगा स्पर्धा में। फिर उसकी दूसरी एग्जाम देनी पड़ेगी, उसको पार करेगा तो सिलेक्ट होगा। जब सिलेक्ट होगा तो फिर भारत सरकार, राज्य सरकार मिल करके उस शहर की ताकत में साथ जोड़ करके उसको स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर ये योजना ऊपर से आएगी तो क्या होगा, भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, वो दिल्ली वालों ने नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया, वो हमारे राज्य सरकार वाले नहीं करते। नहीं, ये नीचे से होना है, और कहीं पर कोई कठिनाई ना आए उस दिशा में आगे बढ़ना है। मैं समझता हूं यहां पर आए हुए सभी महानगर के महानुभावों के लिए ये चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार कीजिए और जो पैरामीटर तय हो स्पर्धा में आइए, जीत करके आगे निकलिए। और एक बार आपने जीत, और जीवन में स्पर्धा हर जगह पे होती है। आप मेयर भी बनते हैं तो स्पर्धा से ही तो बनते हैं, किसी ने ऊपर से तो नहीं बिठा दिया आपको। आप कहीं नौकरी लेने जाते हैं तो वहां भी तो कंपटीशन होती है, आप कंपटीशन को पार करते हैं तो सिलेक्ट होते हैं। तो हमारे शहरी विकास में भी कंपटीशन आवश्यक है, उस कंपटीशन को ला करके स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास है। कभी कभी कुछ लोग माथापच्ची इसमें खपा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी चीज है क्या। बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। हम मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन पे गए और जो पूछताछ वाला व्यक्ति वहां बैठा है उसको 2 सवाल पूछे हमने, और उसने हमको 4-5 सवालों के जवाब दे दिए, जो कि हम पहले उसको पूछने के लिए सोच के गए थे, लेकिन वो समझ गएगा इनको ये पूछना है, वो जवाब दे। तो हम कहे यार ये बड़ा स्मार्ट आदमी है। मेरी आवश्यकता से भी वो एक कदम आगे हैं। मेरे हिसाब से यही स्मार्ट सिटी है कि नागरिकों की जो आवश्यकता है उससे 2 कदम आगे चले। उसकी जो आवश्यकता है आप मांगोगे, हाजिर है। आप चाहोगे, हम सोच रहे हैं। आपका सुझाव है, हाँ हमारी योजना बन रही है। 2 कदम आगे आप देखिए, देखते ही देखते स्मार्ट सिटी बन जाएगी। टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट है, हमने प्रकृति के साथ जीना है, एनर्जी सेविंग ये हमारी स्वाभाविक व्यवस्था हो, वॉक टू वर्क ये कंसेप्ट लाना पड़ेगा, वरना एक जगह पे रहता है और रोज 1.5 घंटा वो ट्रैवलिंग करता है, फिर नौकरी पे जाता है, तो उसकी
मैक्सिमम एनर्जी ट्रैवलिंग में जाती है, बची खुची काम में लगती है, तो वो काम कैसा होगा? अगर उसकी एनर्जी सेविंग होती है, वर्क टू वर्क का कंसेप्ट डेवलप धीरे धीरे हमारे यहाँ होता है, और एक कंपोजिट व्यवस्था विकसित होती है कि जहां सब कुछ अवेलेबल हो, साइकिल पर भी जाए तो अपना काम हो जाए। हमने इस प्रकार के मॉडल को डेवलप करना ही होगा, और जब ये डेवलप करेंगे तो अपने आप शहर के भीतर भी कई छोटे छोटे शहर बन जाते हैं, और वो एक प्रकार से पूर्ण शहर बन जाते हैं। हम उस विचार को लेकर के कैसे आगे बढ़े, तो स्मार्ट सिटी के इस कंसेप्ट को हमने आगे बढ़ाना। चाहे हाउसिंग फॉर ऑल की बात हो, चाहे हमारे 500 नगरों को प्राणवान बनाना है, अमृतमय बनाना है, चाहे दुनिया की बराबरी करने वाले हमारे स्मार्ट सिटी की दिशा में उनमें कदम उठाना है, एक कंपोजिट योजना के साथ अर्बन इंडिया का हमारा विजन क्या है उसको लेकर के हम आए हैं। और ये योजना सरकार में बैठ करके कागज पे बनाई हुई ये योजनाएं नहीं है। शायद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में कंसल्टेशन पहले कभी नहीं हुआ होगा। इतना कंसल्टेशन इस योजनाओं को चरितार्थ करने के लिए लगाया गया है। सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा गया, उनसे पूछा गया, उनसे जानकारी ली गई है, उनकी समस्याओं को समझा गया है और उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया है। फाइनेंशियल वर्ल्ड को भी, उनको भी विश्वास में लिया, बताइए भाई कैसे आप आगे आ सकते हो। जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं उनको भी पूछा गया कि बताइए भाई कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जो कानूनविद हैं कि जिसके कारण कानूनी समस्याएं ना आए, उनसे पूछा गया है। दुनिया में जो अच्छा हुआ है, जिन्होंने अच्छा किया है, उनको भी साथ जोड़ा गया है। इस क्षेत्र में जिन जिन की पहचान है दुनिया में, उन सब की सलाह ली गई है और एक सबसे विचार विमर्श करके एक ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक बार ये चीजें तैयार हुई हैं, अब आगे बढ़ने में देर नहीं लग सकती। ये सरकार कंज्यूमर की सुरक्षा, इस पर सजग है। पार्लियामेंट में एक बिल ऑलरेडी हमारा हुआ गया है, अभी संसद में चर्चा होगी इसकी। वरना हमारे देश में चाहे अनचाहे ये जो बिल्डर लॉबी है, उनकी छवि काफी गिरी हुई है और गरीब आदमी अपने जिंदगी की पूरी पैसा उसमें लगाता है, यानी उसके जीवन का वो एक ही घटना होती है और फिर वो जब लूट जाता है तो उसका तो सब लूट जाता है। एक छोटे छोटे गरीब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए संसद में कानून लाया गया है, जो इस आने वाले सत्र में पारित होगा। तो हम विकास चाहते हैं, हर को जोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हम सामान्य नागरिक की आवश्यकताओं की पूर्ति को भी ध्यान देना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आज 25 जून ये शहरी भारत विज्ञान भवन में एकत्र आकर के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए वैज्ञानिक तौर तरीके से आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेगा। नगरपालिका, महानगरपालिका का जो नेतृत्व आया है, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। यहां सब राजनीतिक दल के लोग होंगे, यहां सभी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग होंगे, लेकिन एक बात निश्चित है, हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो उन बातों को गौर करते हैं कि फलाना राजा था, 5 साल ही उसको कार्यकाल मिला था, लेकिन उसने अपने राजकाल में ये 2 चीजें अच्छी करके गया था। 200 साल के बाद भी लोग उसको याद करते हैं, 100 साल के बाद भी याद करते हैं। उनके कार्यकाल में ये काम हुआ था, उनके कार्यकाल में ये तालाब बना, शहर की पानी की समस्या निकल गई थी, उनके कार्यकाल में 150 साल पहले स्कूल बना था, उस स्कूल में से इतने बड़े बड़े लोग तैयार हुए। जिसको शासन का अवसर मिलता है
उनकी पहचान 50-100 साल के बाद भी कौन सा अच्छा काम करके गए उससे तो नापी जाती है, तोली जाती है। मैं उन नगरपालिका के अध्यक्षों से कहना चाहता हूं, उन महानगरपालिका के अध्यक्षों को कहना चाहता हूं, कल्पना कीजिए आप 80 साल की उम्र के होंगे, आपका पोता उंगली पकड़ करके आपके साथ चलता होगा, तब आपके दिल में इच्छा क्या होगी? जरा कल्पना कीजिए। मैं दावे से कहता हूं आपके दिल में इच्छा ये होगी कि छोटा पोता जो ज्यादा कुछ समझता नहीं, उंगली पकड़ करके वहां ले जाएंगे और कहेंगे देखिए ये भवन है ना, मैं जब अध्यक्ष था ना मैंने बनाया था, ये जो गांव में तालाब है ना, मैं जब अध्यक्ष था ना मैंने बनाया था। हर किसी की ख्वाहिश होनी चाहिए कि अपने कार्यकाल में अपने शहर को कोई अच्छा नजराना दे करके जाने की। आपके जीवन की सफलता उसमें है। आपकी जीवन की सफलता उस बात में नहीं है कि आपने कितने लोगों को पराजित किया, कितनी बार चुनाव जीत करके आए, कितनी बार आपने गठजोड़ करके सत्ता को हासिल किया। यह सफलता का मानदंड नहीं होता है। सफलता का मानदंड यह होता है कि जिस जनता जनार्दन के आपको अवसर दिया है उनके लिए क्या करके गए, क्या करके गुजरते हैं। अगर ये मन में संकल्प लेकर के जाते हैं, ये इरादा लेकर के जाते हैं कि मुझे 5 साल का कार्यकाल मिला है, मुझे 3 साल का कार्यकाल मिला है, जनता जनार्दन ने मुझे अवसर दिया है, मैं मेरे नागरिकों के लिए ये करके जाऊंगा, और उसका जो संतोष मिलेगा ना वो अद्भुत संतोष होगा, अद्भुत संतोष होगा। जीवन भर जीने के लिए वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बना रहता है। अपने पोते के पोते भी अगर आपके आंखों के सामने हैं तो आपका मन करेगा कि अपना उस अचीवमेंट उसको बता के जाएं। ये आपका सपना रहता है, आपके दिल में भी वो सपने जगें, आप भी कुछ करने के लिए कृत संकल्प हो, अथाक प्रयत्न करके अपने शहर के जीवन में बदलाव लाएं, वहाँ के सामान्य से सामान्य नागरिक के जीवन में बदलाव लाएं। इस शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस अवसर पर विभाग के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ताकि देश के शहरी जीवन में बहुत ही अल्प समय में बदलाव आए और 2022 में जब देश आज़ादी के 75 साल मनाता हो तब हमारे शहरों में भी हर परिवार में स्वतंत्रता की उस आनंद की अनुभूति का अवसर दें, उसको हम सफलतापूर्वक पार करें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी के इस ओजस्वी मार्गदर्शन के लिए। निश्चित ही पूरा सदन उत्साहित है। तीनों मिशनों के दिशा निर्देशों, 2 दिवसीय कार्यशाला का अनुभव और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दी गई ऊर्जा जब देश में आज की सभा के माध्यम से पहुंचेगी तो शहरी विकास के लिए देखा गया सपना साकार रूप लेने लगेगा। मैं अब अत्यंत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं श्री मधुसूदन प्रसाद, सचिव शहरी विकास को आभार प्रदर्शन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शहरी विकास, आवास, शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री, मंच पे विराजमान मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी हुपा, विभिन्न राज्यों से आए मंत्रीगण, अधिकारीगण, शहरों से आए महापौर, सभापति, निगम आयुक्त, भारत सरकार के अधिकारीगण, डिप्लोमैट्स, इस हॉल में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि, मीडिया के लोग, देवियों और सज्जनों, आज वास्तव में एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 3 प्रमुख शहरी विकास और शहरी परिवर्तन के कार्यक्रमों का शुभारंभ एक साथ हुआ है। भारत में बढ़ते हुए शहरीकरण की चुनौतियों का
उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया, हम सब जानते भी हैं, पर बार बार अपने को स्मरण कराना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये तीनों कार्यक्रम इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए चलाए गए हैं, जिससे शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन हो, शहर के नागरिकों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हों। मैं दोनों मंत्रालयों, शहरी विकास और शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, दोनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस समारोह को संबोधित किया, शोभित किया और इतना स्टरिंग प्रेरणा संदेश दिया। ये मैं आश्वासन देना चाहूँगा दोनों मंत्रालयों की ओर से कि जो भी ये चुनौतियाँ हमारे सामने हैं उनका हम सामना करेंगे। जो लक्ष्य हमारे सामने रखे गए हैं, जो तीनों कार्यक्रम आज शुभारंभ जिनका हुआ है, उनको क्रियान्वयन करने में पूरी लगन और निष्ठा से काम करेंगे। माननीय श्री नायडू जी हमारे दोनों मंत्रालयों का नेतृत्व और मार्गदर्शन डेली बेसिस पे करते रहते हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि वो इस समारोह में आए हैं। श्री नायडू जी का सदैव प्रयास रहता है कि राज्य सरकारों और अर्बन लोकल बॉडी से सीधा संबंध रखें, जिससे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और अच्छी तरह हो। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय राज्य मंत्री जी का, जो हमारे को सदा बहुमूल्य सुझाव देते रहते हैं, श्री बाबुल सुप्रियो जी। मुख्यमंत्रीगण जो आए हैं, उप मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर, मंच पे विराजमान कैबिनेट सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी उपा, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। आज का कार्यक्रम विशेष तौर पे शहरों से आए महापौर, सभापति और निगम आयुक्तों के लिए है। मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनको कि इतनी दूर वो दिल्ली से आए। ये शायद पहली बार है कि इतने लोग अर्बन लोकल बॉडी से दिल्ली में एक साथ इकट्ठे हुए हैं। उनका ये दौरा सार्थक और सफल रहेगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। 2 दिन का कार्यक्रम, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया, बहुत अच्छा कार्यक्रम उनके लिए बनाया हुआ है। साथ साथ राज्य सरकारों से आए अधिकारीगण, मंत्रीगण, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिप्लोमेट्स, सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे आखिर में मीडिया, विशेष तौर पे दूरदर्शन का आभार प्रकट करता हूँ कि वो समारोह में शामिल हुए और इसकी शोभा बढ़ाई। जय हिंद। प्रधानमंत्री द्वारा आज 3 ऐसी शहरी विकास और परिवर्तन की योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनसे हमारे शहर विश्व स्तरीय बनेंगे। इस नई उम्मीद के साथ विज्ञान भवन से इजाज़त चाहते हैं। दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से नमस्कार।